Good morning, children. Today we will see that some circuits in which series and parallel combination of resistances. Let's start with series combination. Here three resistances are connected in series. How can we say that it is connected in series? Because you can see that one end of first resistance is connected to the one end of second resistance and second is connected to the third resistance. Means end to end, एक का एंड से दूसरे के एंड को, दूसरे के एंड से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, अगर एक लाइन में सीरीज में और यू कैन से दैट एक क्यू में अगर कोई चीज खड़ी है, कोई चीज सपोज हम एक रो बना के खड़ा होते हैं तो उसमें क्या होता है 1 by 1 1 by 1 1 by 1. तो ऐसा कोई अरेंजमेंट होता है बेटा, तो दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन. एंड फॉर सपोज इट इज R1, द वैल्यू इज 5 ohm, सपोज 6 ohm and 4 ohm. So three resistances are given here. So how can we find total resistance, or you can say that is equivalent resistance. So for finding this in series, we will add all three resistance, means R1 plus R2 plus R3. So we will get 5 plus 6 plus 4 is equal to 15 ohm. Okay, so if the resistances are connected in series, but when they are connected in parallel, like that, if three resistances are connected like that, it's mean that just see here, all the first end of all resistance here connected here, here and here. So at this junction or at this joint, one end of all three resistances are present. Similarly here, इसका एक एंड आपका इधर है, इसका भी तीनों का इधर है. So it's mean that if both ends are connected, or you can say that there is a two common point for all three resistances, all four resistances, all five resistances, then it's said to be connected in parallel beta. So suppose R1, R2 and R3. So how can we find the equivalent resistance? Equivalent resistance means what? आपका बेटा यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस लगाया है, अगर हमको मालूम पड़े कि इनका तीनों का कंबाइंड वैल्यू कितना होगा, तो इसके प्लेस पे हम क्या करेंगे, एक ही रेजिस्टेंस यूज कर देंगे उतने वैल्यू का. बट उसका वैल्यू कितना आएगा, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू इन सीरीज यू हैव टू ऐड डायरेक्टली. बट अगर पैरेलल कनेक्शन है तो उस रेजिस्टेंस की टोटल वैल्यूज कितना आएगा, वो कितना करंट को प्रिवेंट करेगा, रेजिस्ट करेगा. उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों का वैल्यू निकालने के लिए वी विल ऐड इन reciprocal order. Suppose Req, equivalent resistance will be R1 1 by R2 plus 1 by R3. Just take value here, take 4 2 and 3 ohm. Now put 1 by 4 1 by 2 1 by 3, take LCM will be 12. So 3 plus 6 plus 4, you will get 13 by 12. So 1 by Req equal to 13 by 12. So after that just आप इसको उल्टा कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के प्लेस पे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के प्लेस पे. वाई, सो हमको डायरेक्टली Req मिल जाएगा. आप इसको उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 by 13. सो आप इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह पे हम एक रेजिस्टेंस 12 by 13 ओम्स का हम यूज कर सकते हैं. अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो ऐसे हम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मींस अगर आप 4 यूज कर रहे हो तो उसके जगह आप चाहोगे सेम वैल्यू का एक यूज करें, तो वो वैल्यू कैसे फाइंड होगी, इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी कैसे, बाय एडिंग इन रेसिप्रोकल ऑर्डर. ये हमारा बेटा रहा सिंपल
series and parallel. Now we will see that in one circuit series and parallel both combination are present. Suppose simple we will move. Suppose point between A and B there are three resistances are connected, R1, R2, R3. So just see here beta, two resistances are connected in parallel. How can we say that it is connected in parallel? इसका दोनों का एक एंड यहाँ ज्वाइंट है और इन दोनों का एक एंड यहाँ ज्वाइंट है. ओके, टेक पॉइंट सी. सो बी और सी के बीच में दोनों का दोनों एंड कॉमन है बेटा. तो इनको हम कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम इस रेजिस्टेंस का पैरेलल निकाल लेंगे. तो वन बाई आर ई क्यू या वन बाई सपोज हम R2 हो गया, R3 हो गया, इसको आप नाम दे दो R4. तो कैसे आएगा? 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 बेटा. टेक इज हियर वैल्यू 2 एंड हियर 6. ओके बेटा. सो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 6, LCM 6, 2 3s are 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 बाई 6. तो आपका इधर आ गया 1 बाई R4 इज इक्वल टू 4 बाई 6. उल्टा कर दो बेटा. तो R4 इज इक्वल टू 6 बाई 4, 2 3s are 2 2s are इज इक्वल टू 3 बाई 2, या हम बोल सकते हैं 1.5 ओम. सो R4 हो गया आपका 1.5 ओम. It's mean that beta in place of both resistance we can use a single resistance which has power 1.5. तो अब इसको कैसे रिप्लेस करेंगे इस फिगर को बेटा? ये पार्ट आपका रिमेनिंग है. सो राइट हियर दैट इज R1 एंड हियर दोनों का कॉम्बिनेशन से एक रेजिस्टेंस यूज कर लो दैट इज 1.5 ओम. हियर योर पॉइंट बी. अब इसका रिजल्ट ये हो गया. अब ये किस में है? आपका सीरीज में. देन डायरेक्टली ये आपका R4 है. सो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? दोनों को डायरेक्ट ऐड कर लेंगे. इसका जो भी वैल्यू दिया रहेगा तो आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा. नाउ विल सी अदर कॉम्बिनेशन. ऐसे सर्किट्स बुक में दिया है तो वहां से करो, और अदर एग्जांपल्स जस्ट ट्राई आउट. इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम प्लीज सेंड मी द सर्किट. जस्ट सेंड द पिक्स ऑफ दैट क्वेश्चन. ओके, let's see the new question. Just try to solve out different types of circuit before solving the questions like that in which resistance, voltage means potential difference and electric current, all threes are present by using the Ohm's law. But before that कैसे आप combinations को break करके solve करते हो उस पे आपको समझना है पहले. Here बेटा 4 resistances हो गए आपके, R1, R2, R3, R4. Just tell me it is in series or parallel. Just start one by one. Here 2 resistances are given here and both are connected in series. इस पार्ट को आप भूल जाओ. तो इन दोनों को ध्यान से देखो बेटा. Both are connected in series because one end of first is connected to the second end. But इन दोनों का दूसरा एंड आपका ज्वाइंट नहीं है. दूसरा एंड किससे ज्वाइंट है? इनके साथ ज्वाइंट है. इट्स मीन दैट इन दोनों को कंबाइन करें तो इसके साथ आपका अगला एंड ज्वाइंट हो रहा है. बट ये आपस में किस में कनेक्टेड है? आपका ये दोनों सीरीज में. सो फर्स्ट वी विल फाइंड द सीरीज ऑफ R1 R2. हियर अगेन R3 एंड R4 बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज एज वेल. तो इनका रिजल्ट आप निकाल लेंगे R1 और R2 का. कैसे? डायरेक्टली सपोज R5 ले लेंगे. सो R5 इज इक्वल टू R1 प्लस R2. सो हमको R5 की एक वैल्यू आ जाएगी आपको. सिमिलरली हियर R6 निकालेंगे तो R6 इज इक्वल टू R3 प्लस R4. डायरेक्टली यू हैव टू हैड बिकॉज बोथ आर इन सीरीज. ये दोनों आपस में सीरीज में, ये दोनों आपस में. सो आपको मिल जाएगा R6. नाउ व्हाट वी विल डू दैट, R1 R2 की जगह पे हम एक रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं R5. नंबर हमने यूज नहीं किया. जब नंबर ला डालोगे आप तो वैल्यू आपको मिलेगी. देन वी विल गेट R5 एंड R6. नाउ रिप्लेस द सर्किट. सर्किट को छोटा छोटा ब्रेक करके बार बार 2-3 सर्किट्स बना के आपको सॉल्व करना है.
अब इस सर्किट को हम कैसे बना सकते हैं, चार रेजिस्टेंस से हमारा 2 हो गया, इसका वैल्यू आया था आपका R5, जो भी वैल्यू होगा वो लिख देंगे जो जब क्वेश्चन में दिया रहेगा, R6। अब हमारे पास 2 ही रेजिस्टेंस है। अब तक ये क्या था, ये कॉम्बिनेशन सीरीज में था, ये भी सीरीज में था। अब इन दोनों का सीरीज है पैरेलल। लेट्स सी, देखो ये एंड आया और ये एंड भी जा रहा है, तो ये दोनों आपस में यहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं। यहाँ पे मीन्स दोनों का एक एंड आपस में ज्वाइंट है, इधर भी दोनों का एंड ज्वाइंट हो रहा है आपस में। तो अब ये पैरेलल है, तो इनको हम पैरेलल निकालने जाएंगे। REQ जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा 1/R5 देन 1/R6 करके करेंगे। अंडरस्टूड बेटा? सो फाइनल रिजल्ट यू विल गेट, जस्ट ट्राई आउट टू सॉल्व आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट, देन यू विल अंडरस्टैंड। आप जब तक खुद नहीं सॉल्व करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। लेट्स सी अनदर सर्किट। Okay beta, so write here A and B. So question will be asked like that, find the equivalent resistance between A and B. तो A और B के बीच में सब रेजिस्टेंस आपका आ गया। जस्ट मेंशन हियर R1, R2, R3, R4, R5 and R6 means total 6 resistances are used. अब लेट्स सी दैट इट इज इन सीरीज और इन पैरेलल। पहले इन तीनों को आप देखो ध्यान से बेटा, सब स्टार्ट फ्रॉम हियर। ऑल 3 रेजिस्टेंसेज फ्रॉम हियर टू हियर, these 3 resistances are connected in series because इसका one end is connected to this resistance and इसका next end is connected to this resistance। तो ये 3 रेजिस्टेंस आपका सीरीज में है बेटा। तो फर्स्ट व्हाट यू विल डू, R6 हो गया, अब इसको हम R7 बोलते हैं। तो पहले हम R7 निकाल लेंगे। हाउ, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्यों हमने इन तीनों को ऐड किया डायरेक्टली, बिकॉज ऑल 3 रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज। यहां से इन तीनों के बीच में सीरीज है। अभी हमने इसको नहीं निकालना है, इसको बाद में टच करेंगे। तो इससे आपका R7 आ गया। तो आफ्टर दैट व्हेन यू विल गेट R7, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज इन्फॉर्म मी इन कमेंट बॉक्स, देन पर्सनली आई विल कॉन्टेक्ट यू बेटा। ये 3 रेजिस्टेंस का आपका एक हो गया, तो अब इन तीनों को हम हटा देते हैं, कोई भी एक रेजिस्टेंस यूज कर लेते हैं। ये आपका वायर था, इधर भी वायर है, इधर यहाँ यूज करो, यहाँ यूज करो, कहीं पे भी आप एक रेजिस्टेंस लगा दो और उसको नाम दे दो R7, बिकॉज वी हैव रिप्लेस्ड 3 रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज बाय 1 रेजिस्टेंस विद द सेम वैल्यू। R7 हो गया। अब लेट्स सी, इन दोनों को देखो बेटा, ये दोनों आपका पैरेलल है। वाई, इन दोनों का यहाँ पे एंड कनेक्टेड है, इन दोनों का भी एंड यहाँ पे कनेक्टेड है। अब इन दोनों को हम पैरेलल सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को पैरेलल सॉल्व करोगे तो यू विल गेट बाय इन दिस वे 1/R7 प्लस 1/R4, देन जो भी वैल्यू आएगा आपका R8 नाम दे दो उसको, बाद में उसको पलट देना आप, तो R8 आपको मिल जाएगा यहाँ से। सो नाउ व्हाट वी विल डू, बोथ रेजिस्टेंस विल बी रिप्लेस्ड बाय 1 रेजिस्टेंस दैट इज R8। ऐसे ब्रेक करके ही आपको करना है। R8, okay? So now all 3 resistances are connected in series again. Then again add in series way. So by this way you will solve the circuits.